नमो वज्रायणम नमो लोए सब साउणमे सुमंजन मुक्कारो सब पाप प्रणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पद्मं हवै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महोभैवम जय सुवर्णं बभवो तित्तैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रिय पौमा वै पमुनिसेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। બધા બેસી જાજો. ત્રણ દિવસનો કાર્યક્રમ છે 20, 21, 22. એમાં આજે આપણી લાગણીને માન આપી પૂજ્ય મહારાજ સાહેબના અંતે પ્રત્યે આદર અનંત પ્રેમભર્યો વાત્સલ્ય છે એવા આચાર્ય ભગવંત રત્નસુંદર મહારાજ સુરેશ્વરજી મહારાજ, કાર્યદક્ષ આચાર્ય દેવશ્રી યુગ સુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ આદિઠાણા, પૂજ્ય કીર્તિચંદ્ર મહારાજ સાહેબ, પૂજ્ય જૈનચંદ્ર મહારાજ સાહેબ, પૂજ્ય વિનય મુનિજી મહારાજ, વિજય મુનિજી મહારાજ અને પૂજ્ય પદ્મયશ સુરી મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદના. પદ્મભૂષણથી સન્માનિત જૈનાચાર્ય શ્રી આચાર્ય ભગવંત રત્ન સુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, જેમની પ્રભાવશાળી વાણી સાંભળીને જેલમાં રહેતા ગુનેગારો કેદીઓના પણ જીવન પરિવર્તન પામ્યા છે, જેમની જોશીલી વાણી વહાવતી યુવાનો માટે જ્ઞાન શિબિરો, વર્લ્ડ કપની મેચોની સામે પણ ટક્કર લેવા સમર્થ નીવડી છે. અનેક દાખલા દલીલો અને રસમય દ્રષ્ટાંતો સાથે વહેતી જેમની પ્રવચન ધારામાં ભીંજાઈને અનેક કુટુંબોમાં શાંતિ સ્થપાઈ છે અને જીવનનો રાહ બદલાયો છે. ભારતની રાજધાની દિલ્હીમાં ચાતુર્માસો કરીને જેમણે કરેલા સંસ્કૃતિ રક્ષાના કાર્યોથી પ્રભાવિત થઈને ભારત સરકારે જેમને પદ્મભૂષણના એવોર્ડથી નવાજ્યા છે અને ગચ્છાધિપતિ પૂજ્ય આચાર્ય દેવશ્રી જયઘોષ સુરેશ્વરજી મહારાજે જેમને રાજ પ્રતિબોધકની પદવી આપી જેમની શાસન પ્રભાવનાની હૃદયથી અનુમોદના કરી છે અને જેઓ આજે જીન શાસનને દીપાવી રહ્યા છે. એવા પરમ પૂજ્ય જીન શાસન પ્રભાવક પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત શ્રી રત્ન સુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજ સરસ્વતી લબ્ધિ પ્રતિષ્ઠ પ્રભાવક વક્તા અને સિદ્ધ હસ્ત લેખક છે. સરળ, સચોટ અને મધુર શૈલીમાં લખાયેલા વિવિધ વિષયોને આવરી લેતા 322 જેટલા પુસ્તકો જેમણે ગુજરાતીમાં પ્રકાશિત થયા છે અને અંગ્રેજી સહિત દેશની અનેક ભાષાઓમાં પણ તેના અનુવાદો પ્રગટ થયા છે અને જૈન અને જૈનેતરમાં સમાજમાં લોકપ્રિય બન્યા છે. યુવા પ્રતિબોધક વર્તમાન તપોનિધિ પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ શ્રી વિજય ભુવન ભાનુ સુરેશ્વરજી મહારાજની અનહદ કૃપા જેમની ઉપર સતત વરસતી રહી છે અને
આજે 70 વર્ષની વયે પણ જેઓ સતત જીન શાસનની પ્રભાવનામાં વ્યસ્ત અને મસ્ત છે, તેઓ પૂજ્યપાદ આચાર્ય શ્રી રત્નસુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, પૂજ્ય જીન ચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ પ્રત્યેની આંતરિક આત્મીયતાથી અને આપણા ભાવભર્યા આમંત્રણથી આજે પોતાના શિષ્ય પરિવાર સાથે આપણા ગુરુદેવના અમૃત મહોત્સવના પ્રારંભે તિથલના આંગણે પધાર્યા છે, ત્યારે આપણે તેમનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરીએ. તેઓ શ્રીની શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને તેઓ સતાયુ બનીને નિરંતર જીન શાસનની પ્રભાવના કરતા રહે તેવી શાસનદેવને પ્રાર્થના કરીએ. એમના જીવનથી અને કાર્યોથી સૌ પરિચિત છે, વધારે કંઈ કહેવું નથી. અને હવે પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંતને વિનંતી કરીએ કે એમની મધુર વાણીનો આપણને સૌને લાભ આપે. પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત. ઓ સોરી, કાંઈ પણ આમાંથી મારાથી કોઈ થયો સાહેબે સારું 382 પુસ્તકો છે, કાંઈ પણ આમાં મારાથી થોડું કાંઈ પણ બોલાવ્યું હોય તો મિચ્છામી દુક્કડમ. હવે પૂજ્યપાદની મધુર વાણી. एक लड़के ने एक सब्जी वाले को गलत रुपये की नोट दे दी. रुपया झूठा था बिल्कुल. सब्जी वाले ने वो रुपया देखा, मालूम भी पड़ गया रुपया झूठा है. फिर भी आसमान की ओर रुपया देख करके अपने पास जो जगह थी उसमें रुपया रख दिया और जिसने सब्जी मांगी थी उसने सब्जी दे दी. झूठा रुपया देने वाले को पता भी चल गया कि रुपया झूठा है, फिर भी उसने जानबूझकर के सब्जी दे दी. माउथ पब्लिसिटी हो गई. ये आदमी बेवकूफ़ जानबूझकर के बन रहा है, झूठा रुपया लेता भी है और सच्ची सब्जी देता भी है. 1 2 3 4 5 लोगों के बीच में बात चली. 4-5 महीना बाद चली. वो सब्जी वाला बुढ़ा था और एक दिन ऐसा हो गया, अंतिम समय नज़दीक आया. अपने परिवार को उसने कहा मुझे भगवान के सामने अकेले छोड़ दो, और परमात्मा के फोटो के सामने वो सब्जी वाला बैठ गया, दरवाज़ा बंद कर दिया. अंतिम समय चल रही थी और उस टाइम सब्जी वाले ने परमात्मा से विनती की, भगवान एक मेरे जैसा छोटा आदमी सब्जी वाला जानबूझ कर के रुपया देने वाले झूठा दे रहा है, मैं जानता था, फिर भी आज तक मैंने किसी झूठे रुपये को वापस नहीं भेजा. हर रुपये का मैंने पैसा सब्जी दे दी. भगवान आज इसलिए तुझे विनती करना चाहता हूँ, मेरे जैसा छोटा आदमी सब्जी वाला भी यदि किसी का झूठा रुपया वापस नहीं करता है, भगवान आज मैं पूरा का पूरा झूठा आदमी तेरे पास आ रहा हूँ, मुझे यकीन है तू मुझे भी तो वापस नहीं करेगा. जो भी महापुरुष हुए उन सभी का ऑब्जर्वेशन ये था कि हम सच्चे नहीं हैं. 3.5 करोड़ श्लोक के रचयिता कलिकाल स्वर्ण हेमचंद्र श्री महाराज, उनका भी ये कहना था, काहम पशुरपि पशु वीतराग स्तव कच उत्तीर्तिर्षु ररण्यानी पद्भम पंगुरी वासनता. भगवान पशु में भी पशु में हूँ. 3.5 करोड़ श्लोक के रचयिता महापुरुष जी अपने आप को मानते, मैं पशु में भी पशु हूँ. महाराजा कुमारपाल अपने स्तवन में ये बोलते, अहम प्रभु निर्गुण चक्रवर्ती. सारी दुनिया में जितने भी दूषित आदमी है उसमें चक्रवर्ती का नाम मेरा है, नंबर 1 पे मैं हूँ. उपाध्याय यशोजी महाराज भी ये कहते हैं, हमारी सभी मुखा मेरे जैसे मूर्ख. तुम समझते हो, नाम सुना है उपाध्याय जी महाराज का, जिनको लेकर के वर्तमान मुनि संस्था पागल है. वो उपाध्याय जी महाराज खुद कहते हैं मैं भी मूर्ख हूँ. कलिकाल स्वर्ण कहते हैं मैं पशु हूँ. महाराजा कुमारपाल कहते हैं चक्रवर्ती में भी निर्गुण में चक्रवर्ती में हूँ. तब मैं और आप अपने आप को थोड़ा भी अहम से पुष्ट करें
कहीं उचित नहीं होगा। नंबर 1, एक बार हम कन्फेस कर दें कि भगवान मैं झूठा आदमी हूँ, फिर भी तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे पर मुझे विश्वास नहीं है मगर तेरे पर विश्वास है, तारे द्वारे आवे लो कोई खाली हाथे जाए ना। आज 5 बात आपके सामने रखना चाहूंगा जिनकी रोज सतत समाप्त होने की ओर जा रही है। भले ही मान ले कि हम बड़े होते, मत रोज नजदीक आती है, उम्र बढ़ती है, जीवन कम होता जाता है। चाहे बिलीव करे या न करे मगर ये वास्तविकता है। वैराग्य शतक नाम के ग्रंथ में 3 शब्द लिखा है, टिन्नी जना अणु लगा, रोगो जरा अमच्चुअ। तेरे पीछे रोग लगे हैं, तेरे पीछे जरा लगी और तेरे पीछे मौत लगा है। ये तीनों का फासला रोज 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 कम होते जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा तीनों तेरे गले पकड़ के यहां से ले जाएंगे। अभी कुछ भी अच्छा करने में डिले करना तेरे लिए बहुत जोखिम बन सकता है। नंबर 1, आराधना के मार्ग पे आगे जाना है। पहले नंबर की कंडीशन, गिव एंट्री। हम मंदिर में गए, परमात्मा के दर्शन तो किए, हमने अपने हृदय में एंट्री कितनी दी? गुरु भगवान के पास गए, हमने आपको हृदय में एंट्री कितनी दी? आज छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, एंट्री देने की मानसिकता में हमारा शायद कितना परसेंटेज आता है? एक छोटा सा प्रश्न, भगवान को देखने के चाहते हो, भगवान को मिलने के लिए चाहते हो या भगवान बनने के लिए चाहते हो? आई वुड लाइक टू ए क्वेश्चन टू यू। परमात्मा को देखने के लिए जाना अलग, भगवान को मिलने के लिए जाना अलग और भगवान बनने के लिए जाना वो अलग। अर्यंत ना ध्याने अर्यंत बनी जैसो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जैसो। आपको मैं पूछना चाहता हूँ जीतू भाई, भगवान को देखने के लिए, मिलने के लिए या भगवान बनने के लिए? बोलना तो आसान है, चलो भगवान की बात छोड़ो, मेरी बात करूं, मुझे मिलने के लिए आते हो, देखने के लिए आते हो या साधु बनने के लिए आते हो? हो गया पूरा प्रकरण। व्हाट इज योर मेंटालिटी? मैं गुरुदेव के पास जाता हूं मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, या कहीं ना कहीं क्लिक हो जाए, मेरे जीवन में भी मुनि जीवन आ जाए? व्हाट यू विश? गिव एंट्री। परमात्मा को मैंने हृदय में स्थान दिया है और मैं निश्चित तौर से चाहता हूं मैं कभी परमात्मा बन जाऊं। क्यारे बनी सऊ साचो रे सन, क्यारे बन से मारा भवनो रे अन। इस सभा में जो भी बैठे, सबसे पहले नंबर का स्टेप, गौतम महावीर को मिलने के लिए भी नहीं गए थे, झगड़ने के लिए गए थे। भगवान को मैं दिखा देता हूं, मुझे छोड़ करके सर्वज्ञ कौन बन सकता है, और महावीर को मिले, महावीर को देखे, महावीर के साथ झगड़े करने का प्रयास किया, अल्टीमेट गौतम खुद महावीर बन गया। आपसे मैं पूछना हूं, इतने दूर दूर से आए हो, डेप्थ से आपकी मेंटालिटी क्या है? मिलना है, दर्शन करना है, या भगवान ऐसा आशीर्वाद मुझे मिल जाए मैं भी आपके रास्ते पे आ जाऊं? किसी अबजपति को मिलते हो देखने के लिए, मिलने के लिए, या अबजपति बनने के लिए? जीतू भाई, नहीं जानना चाहता हूं। हम संसार के क्षेत्र में सिर्फ देखने मिलने के लिए नहीं जानते, बनने के लिए जाते। और यहाँ सिर्फ देखना है, मिलना है और बनने की बात करीबन करीबन। सच बोलो, मैं साधु नहीं बन सकता हूं कि मुझे साधु बनना ही नहीं है।
आपसे जवाब चाहिए, मैं अकेला नहीं बोलूँगा। समझ में नहीं आता कि तुम समझते हो, सुनते हो, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, साधु नहीं बन सकते हो या साधु बनना ही नहीं है? बनना नहीं है, ओके, तो फिर मेरे पास क्यों आते हो? क्या बात क्या करना है? ये चर्चा थोड़ी करनी है। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो, टॉप क्लास के क्षेत्र में, आप चाहते हो कि मैं कब बनूं? गिव एंट्री। रोहिणिया चोर जिसके बाप ने बताया था कि महावीर का वचन कभी सुनना नहीं, और गलती से उसको महावीर के वचन सुनाई पड़े और वो सुनते वक्त भी आंख में कान में अंगुली डाल दी थी। गलती से भी महावीर का वचन सुनाई न पड़े, उनके वो समझ में था, फिर भी महावीर के वचन उनके कान पे सुनाई पड़े, कांटा चुभ गया और सुनना पड़ा। एक कान में एंट्री दे दी, और फिर जो रोहिणिया चोर का हुआ वो आपको पता है। भगवान महावीर के चरण में जाकर के वो साधु बन गया। आपने वो सुना होगा, भगवान महावीर ने 6 महीने का 24 उपवास किया, रोहिणिया चोर ने भी 6 महीने का उपवास किया। गिव एंट्री। आप यहाँ आए हो और निकल जाएंगे, तारीफ करेंगे, प्रसंग अच्छा हो गया, प्रवचन अच्छा था, सब कुछ, मगर आपकी फीलिंग क्या? मैं 2 बात बताना चाहता हूँ। एंट्री देना 2 तरीके का होता है। मेरे से प्रभावित हो जाना, वो भी एंट्री, और मेरे से भावित हो जाना, वो भी एंट्री। प्रवचन से प्रभावित होकर के बाहर निकल गए, बेस्ट प्रवचन, मजा आ गई, ये प्रभावित, और जीवन में परिवर्तन आ गया, ये है भावित। आपको मैं पूछना चाहता हूं, अब तक जो गुरु भगवान के पास आए, प्रभावित होके निकल गए या भावित होके चले? अमित भाई, क्या भावित होना? वो तो रिवॉल्यूशन है। भगवान के समर्षण में जाने वाले प्रभावित होते थे, भगवान से भावित नहीं होते थे। समर्षण देख लिया, बढ़िया समर्षण, टॉप आइटम, और प्रभावित होकर के निकल गए। परिवर्तन तो उनका ही हुआ जो भावित बन के निकल गए। क्या भगवान, क्या भगवान! जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो प्रभावित, और वो कितना सुंदर होगा, वो है भावित। बड़ी पीड़ा है, हम इतने नजदीक आने के बाद भी हमारे में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आए, क्योंकि हम प्रभावित हो गए, डेप्थ तक अंदर गया ही नहीं। और एक बात बताऊं, मन जहां पागल हो जाए वो है प्रभावित, और हृदय जहां पागल हो जाए वो है भावित। मन तो आपका प्रभावित हो जाता है प्रवचन से, भावित होना वो सबसे बड़ी मेरे और आपके जीवन की चैलेंज। 1964 में गुरुदेव के प्रवचन अचलगढ़ की शिविर में सुने। ऑरेटर थे गुरुदेव, सीए विद फर्स्ट क्लास थे। प्रभावित होके तो कई लड़के निकल गए, भगवान की कृपा से भावित हुआ, आज यहां तक पहुंचा। તમને ભાવિત થવા મતલબ ડર શું છે? મારે જાણવું છે તમારી આગળ, તમે અમારાથી ભાવિત થાઓ એમાં તમને ચિંતા શું છે? हैं? संसार के क्षेत्र में हर जगह तुम्हारा सत्व है, यहाँ क्यों नहीं है? नहीं, आई वुड लाइक टू, तुम गंभीरता से जवाब दिया, मुझे आनंद आया। सत्व क्या नहीं है? आपको कुछ करना नहीं। मैं एक बात बताऊं, नदी को सागर तक पहुंचने में साल लग जाते हैं, मगर नदी को सागर बनने में 2 मिनट नहीं लगती। रिपीट, नदी को सागर तक पहुंचने में मे भी पॉसिबल 2-3 साल लग जाते हैं,
मगर जैसे ही नदी सागर के पास गई, सागर बनने में 2 मिनट का खेल है। परमात्मा के पास जाने में 2, 4, 5, 15, 50 साल लग सकता है। परमात्मा बनने में तो कोई फर्क ही नहीं होता है। તમે મને સુખી માનો, તમે અમને સુખી માનો, શું છે? નહીં, ગપ્પા ન મારો. તમે જે માનતા હો બોલો. તમે ખરેખર અમને સુખી માનો? તમારા પરિવારને અમારા જેવા સુખી થવાની પ્રેરણા કરો. ચત્તારી પરમંગાણી દુલ્લાણી જંતુણો માણું સત્તમ સુઈ श्रवण उत्तराधीन सूत्र लगते 4 दुर्लभ चीज में सबसे प्रथम दुर्लभ चीज वो तो आपको प्राप्त हो गई। दूसरे नंबर की दुर्लभ चीज है जिन वचन का श्रवण। आप एंट्री जब तक मुझे नहीं देंगे तब तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं। एक लड़के ने अपने मित्र से चैलेंज किया, 10 बोतल पीता हूं मगर चढ़ती नहीं है। આમ તમને પૂછી લ્યું, તમે નવા છો મારા માટે, પણ આમ જનરલ કહે ને કે આ માણસ બહુ પીવે છે, એ પીવે શબ્દ આવે ત્યારે તમારા મનમાં શું આવે? દૂધ, કોલ્ડ ડ્રિંક, પાણી, શરબત? એટલે આમ તમે શું આમ તમારી આંખ સામે શું આવે ચિત્ર? પીવે છે એના તો બધા અર્થ છે ને. તમે શું માનો? હે, સાચું બોલો, પીવેની સાથે આ કેવી રીતે ગોઠવાઈ ગયું? बोला करता उसने बोल दिया 10 बोतल पीता हूँ कभी चढ़ती नहीं है। ये बोला पॉसिबल कैसे? 10 बोतल पीने के बाद चढ़ी नहीं, एक में चढ़ जाती है। उसने बोला तेरे सामने पी लेता हूँ। और बोतल लिया, बोतल मुंह में डाली और जैसे डाली, एक बोतल गई थी, सीधा थूक दिया, दूसरी थूक दिया, तीसरा फेंक दिया। 10 बोतल पीने के बाद उसने बोला पता चला 10 बोतल पीने के बाद भी अब तक चढ़ी नहीं। उसने बोला 100 पी जा, नहीं चढ़ेगी। चढ़ती तब है गले से नीचे उतरती है। आटला प्रवचन सांभळ्या पण तमने चढ़ी नहीं, समझ्या? હું શું કહું છું? તાળી એની પાડી પણ कितनी बोतल पी? बोले बहुत प्रवचन सुने गुरुदेव, एक भी प्रवचन चढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि गले से नीचे उतरा ही नहीं। प्रभावित तो बहुत हो गए, हम भावित नहीं बने। सबसे पहले नंबर की कंडीशन है गिव एंट्री। चाहे हरिभद्र समाज, चाहे हेमचंद्राचार्य, चाहे उपाध्याय जी महाराज, चाहे हम सब, गुरुदेव के पास जाने वाले तो बहुत कुछ है, मगर जिसने एंट्री दे दी हृदय से, उनको चढ़ गई और उनके जीवन में रिवॉल्यूशन आ गया। नंबर 1 गिव एंट्री। एंट्री देने के बाद सेकंड नंबर का स्टेप चार्ज बैटरी। ऐसे निकल मत जाओ, चार्ज बैटरी। हमारा ठंडापन कहीं जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है। दान की बात सुनते कुछ होता नहीं, सिल की बात सुनते कुछ होता नहीं, तप की बात सुनते कुछ होता नहीं, हर कुछ बात सुनते, मगर अंदर से जो बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए। गुरुदेव, एक आदमी 1 करोड़ का डोनेशन देता है तो आई कैन बी, 1 लाख का डोनेशन तो मैं भी तो दे सकता हूं, मगर नहीं। તમને આમ છોટો એક નાનકડો પ્રશ્ન પૂછી લઉં, અમારી દીક્ષા જ્યારે જુઓ, જોઈએ છે ને એકાદ, આમ અનુમોદના કરો કે ઈર્ષા કરો? હે, અનુમોદના। અને કોઈ કરોડપતિ અબજપતિ બનીને આવે ત્યારે અનુમોદના કરો કે ઈર્ષા કરો? ये अबजपति बन गया, मैं रह गया, ये ईर्षा। और चारित्र जीवन के मार्ग पर यदि कोई गया,
हम बहुत अनुमोदना करते, ईर्षा नहीं करते। સાચું બોલો, આવું કેમ? અબજપતિ થાય એના માટે તમને એમ થાય કે હું ક્યારે બનું, અને કોઈને મુનિ થતા જોઈને તમને ક્યારે એમ કેમ ન થાય હું ક્યારે બનું? કઈ વાંધો નહીં, અબજપતિનું શું મહત્વ છે તો તમને ખબર છે ને? સાચું બોલો, અમારી તમને, તમારી તો તમને ખબર છે ને, મજામાં નથી તમે, ખાલી લીંબુ રાખીને ફરો છો એટલું। थोड़ा डेप में तुमने जाइए। मुंबई में 2 छोकरा चर्चा करता था, यार अभी टावर में मैंने 15वीं मंजिल पे फ्लैट लिया, मेरा बाथरूम 50 लाख का है। और इनका मित्र था, उस भी ने बता दिया तेरा बाथरूम 50 लाख का, तो मेरे 65 लाख बाथरूम। और वो नीचे चर्चा कर रहे थे और दोनों के बीच में चर्चा हो रही थी। गांव का छोटा सा आदमी वो सुन रहा था। और उसने बोला यार 50 लाख और 65 लाख का संडास बाथरूम। और उसने बोला यार तुम तो कोई नहीं। क्या कोई नहीं? तेरे पास औकात क्या? तेरा चेहरा तो देख, कपड़े तो देख, बेकार तो है ना, सब कुछ है, मगर तुम जो बोलते हो मेरा संडास 50 लाख का, ये बोलता है मेरा संडास 65 लाख का। मारू खेतर 7 करोड़નું છે, એમાં હું ત્યાં સંડાસ જાઉં છું રોજ। પાણી ઉતરી ગયું 1 મિનિટમાં। सच बोलो, हमने क्या पाया वो नहीं मानता हूं, आपने क्या पाया है? हमारी बात छोड़ दो कि मुनि जीवन में तुमने क्या पाया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, तुमने क्या पाया इसने पूरे दिन में? અહીંયા બેઠેલાને એક પ્રશ્ન પૂછ્યું, સાચું બોલો, પ્રોફિટમાં લોસ હોય તો તમે આમ મજામાં રહી શકો? પ્રોફિટમાં લોસ હોય ત્યારે સ્વસ્થતા ટકી રહે? हाँ हाँ पढ़ोगे ना पढ़ो? हैं नहीं, केम? प्रोफिटમાં લોસ છે, લોસમાં લોસ નથી, ખાલી પ્રોફિટમાં લોસ। ગઈ વખતે 1 કરોડનો પ્રોફિટ હતો, આ વખતે 80 લાખનો થયો, એમાં આટલી બધી ચિંતા છે નહીં। એટલે કેમ પણ પ્રોફિટમાં લોસ છે? लॉस वाला दुखी हुए तो समझा जाए, प्रॉफिट में लॉस में टेंशन केम? ज्यादा हाँ सेनु पण लोभ छे ज, पण प्रॉफिट में लॉस हाँ एमां तकलीफ शुं पड़ी? हमारे में उस शब्द लिखा है कि गोचरी मिले तो संयम वृद्धि, न मिले तो तपोवृद्धि। क्या ताकत है मुनि जीवन की? चार्ज बैटरी। ये प्रवचन सुनने के बाद, बाहर निकल जाने के बाद ताली बजाना, कमेंट करना, मजा ठीक है, कोई विरोध नहीं है, मगर एक चीज लेकर के आए थे। आज गुरुदेव के प्रवचन सुनने के बाद जीवन में ये कुछ पाया मैंने। वर्षों पहले गोरेगांव में बंगारू नगर एरिया है, मैं दर्शन करने के लिए गया था। एक लड़के ने मुझे बता दिया, कल इसी जगह पे मेरे बेटे ने मुझे मौन कर दिया गुरुदेव। मंदिर में गया, 1 रुपया निकाला जेब से और बेटे को दिया कि बेटा ये रुपया भगवान के भंडार में डाल दे। इतनी बड़ी सभा के बीच में आपकी श्रद्धा को मैं चैलेंज करता हूं। महाराज साहब, लड़के ने मुझे मौन कर दिया। छोटा बेटा था, उसने मुझे पूछा, पापा ये भंडार में रुपया क्यों डालना है? ये प्रश्न जो बेटे ने पूछा वही प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं। आपका बेटा जब आप इनको रुपया बोलो कि भंडार में डाल दे, और यही प्रश्न आपका बेटा पूछे, व्हाट विल बी योर आंसर? अमित भाई खाली जवाब જોઈએ। નાનકડો બાબો તમને પ્રશ્ન પૂછે, પપ્પા દેરાસરના ભંડારમાં રૂપિયો શું કામ નાખવાનો? then what will be your answer? આગે તત્વર સૂત્રનો પ્રશ્ન નથી કે તમે એમ કહો કે આન્સર કંઈ ભણ્યા નથી,
આમાં તો ખાલી એટલો જવાબ આપી દો. હે સાચું બોલો, બેટાને ચડ્ડી પહેરતા નથી આવડતું, અને એને તમે જે રીતે સમજાવો એ રીતે આમ સમજી શકશે કે ફ્યુચરમાં સારા માર્ગે કામ લાગશે. એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લેવલ એટલું છે ખરું? But for what? Why we would like to share? But for what? तो रास्ते में क्यों नहीं डालते हो? शेयर करना भगवान के भंडार में. व्हाट इज द पर्पस? आप वो बेटे को ऐसा कन्विंस कर दो कि उनका उत्साह बढ़ जाए. What will be your logic to him? He is not mature, he is not adult. Maybe it is about paying it forward. You got something now, you are sharing it with someone. ओके, आउटपुट क्या है ये बोलेगा बेटा. पप्पा इसमें डालने में आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? 1 रुपया डालने में से मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? हर जगह बेटा बोलेगा आउटपुट तो चाहिए उनको. જીતુભાઈ શું કહેશો? ओके राइट. आप वो बेटे की स्थिति देख करके आप ये बोलेंगे कि बेटा 1 रुपया देने से बहु घणું મળે, એમ જ કહેશો ને? તો દીકરો તરત પૂછે કે પપ્પા પાજી બાકીના રૂપિયા ખિસ્સામાં કેમ નાખ્યા? બધું નાખી દો. આટલું બધું આઉટપુટ 1 ના 100 મળે તો શેર બજારમાં હું કામ રોગો જ પછી? Then what will be your answer? 1 रुपया डालने से 100 रुपया मिल सकता है यदि तुम बेटे को कन्विंस करते हो. श्रद्धा है आपको, सिर्फ बेटे को आगे बढ़ने के लिए तुम बोलते कि बेटा 1 रुपया देने से बहुत कुछ मिलता है. आपको ही खुद को ट्रस्ट नहीं है. और जिस दिन आपको पता चलेगी 1 से कई जाना ज्यादा मिलता है, चार्ज बैटरी, फिर आपको लगेगा यहां डालने से तो मिरेकल हो जाता है. और वो लड़का जिनका नाम विनोद था, महाराज साहब बेटे के सामने जेब में से जितने रुपये निकाले थे सब अंदर डाल दिए बेटे की श्रद्धा मजबूत करने के लिए. यहाँ डालने से जो आउटपुट मिलता है मेरे तेरे कल्पना बार की बात है. हम खोखले हैं, शब्द तो मेरे पास बहुत है, मगर जो ट्रस्ट, जो विश्वास, जो भरोसा, जो श्रद्धा, हम लिटरली खोखले हैं. किसान पे हमें भरोसा है कि 1 दाना दिया, जमीन आउटपुट में बहुत दुख दे देगी. बैंक में यदि पैसा जमा करा दिया, सेव हो जाएगा, व्याज भी मिलेगा. यह हमारी श्रद्धा नहीं है. અને એટલા માટે દાનના તમને 3 કલંક કહી દઉં. નંબર 1, દાન કરવાની વાત આવે ત્યારે લગભગ એવોર્ડ કરવાના. સેકન્ડ નંબર, ઓછામાં ઓછું આપવું પડે તો સારું, આ માનસિકતા. અને ત્રીજા નંબરમાં જે પણ આપો એ રોતા રોતા આપો, ઉત્સાહ સાથે ના આપો. એમ આઈ રાઈટ? તમે આજ સુધીમાં ક્યાંય પણ દાન આપ્યું ને પછી આમ કીધું ખરું વારંવાર મને યાદ કરજો? જો આપ્યું ફરી વાર મને કહેતો નહીં હવે. Why we are happy due to give entry charge battery. रोज आप सोच नहीं सकते हो कितनी बैटरी चार्ज होगी, then we are happy forever. 1-2 दिन के लिए नहीं, forever, कभी भी ever. તમે જ ઘણા કહો છો ને સાહેબ આપની આગળ આવીએ ત્યારે બધું આમ ઘણું ઘણું સારું લાગે, આવું બોલો છો ને. ઘરે ગયા પછી શું થાય છે? જીતુભાઈ શું થાય? અહીંયા આવ્યા પછી જે ભાવો જાગે
એ ઘરે ગયા પછી બધા ઓછા કેમ થઈ જાય છે? અમીનભાઈ શું કારણ? મને ઘણી વાર થાય, તમે બાથરૂમમાં જાઓ ત્યારે પણ જો પૈસાના વિચાર આવે તો બજારમાં ભગવાનના વિચાર કેમ ના આવે? बाथरूम में स्नान करते करते यदि प्रभु का विचार तुम कर सकते हो तो बाथरूम में स्नान करते करते परमात्मा का विचार क्यों नहीं आ सकता है? मे बी पॉसिबल यदि तुम्हारी बैटरी चार्ज हो चुकी है तो। नंबर 1 गिव एंट्री, सेकंड नंबर चार्ज बैटरी, थर्ड नंबर स्टॉप कमेंट्री। पूरे दिन भर तक हम कमेंटेटर कभी मैच में खेलता नहीं है, समझे न? कमेंटेटर वो ही बन सकता है जो खेलते उनके लिए एनालिसिस पोस्टमार्टम करते रहता है। आप दावा के साथ बोल सकते हो गुरुदेव कमेंट्री नहीं करता हूँ, स्टॉप कमेंट्री। इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, मैं इतना ही सोचता हूँ मेरा क्या होगा। यही हमारे आचार्य सूत्र में एक शब्द लिखा है, चेष्टा परस्य वृत्तांते मुकांद बधिरोपमा। दूसरे के लिए वो क्या करता है उनके लिए तुम मुक बन जाओ, बधिर बन जाओ और अंध बन जाओ। सामने वाला क्या करता है वो न देखना है, न बोलना है, न सोचना है। सच बोलो, इसमें हमारी मानसिकता क्या? स्टॉप कमेंट्री फॉर एवरीवन। सिर्फ मैं मेरी ही सोचता हूँ, दूसरे की नहीं सोचता हूँ। લગભગ તમને 2 જણા મળે ત્યારે વાતચીતનો સબ્જેક્ટ કયો? શા માટે જાણવું છે મારે? नहीं, ह्यूमन टेंडन्सी, हमें ह्यूमन ज छीए, ढोर नहीं है। અમે પણ તમારી હારે જ છીએ। તમે તમારો બચાવ હ્યુમન ટેન્ડન્સીના નામે કરો, ઉચિત નથી। શા માટે તમે આટલી બધી ચર્ચા કરો? હે? બટ ફોર વોટ? તમને મળે શું એમ કહું છું? આટલી બધી કોમેન્ટ્રી બહારની કરો અને સૌથી મોટી તકલીફ આ ઘરમાં દીકરો ન માને કે મોદી આમ કરવું જોઈએ, એટલે તારા દીકરાને તો અંબાડ પેલા। एवरेज वर्ग को तुम चेक करो, बस कॉमेंट्री छोड़ के इनके पास सब्जेक्ट ही नहीं कोई। और कॉमेंट्री में भी कोई सच्ची बात तो नहीं करेगा, गंदी बात, गलत बात, झूठी बात, मन को डिस्टर्ब करे ऐसी बात। चलो कॉमेंट्री करो तो भी अच्छी तो करो। एक कॉमेंटेटर ट्रिपल सेंचुरी मारता है तब इनकी तारीफ करता है, कमाल कर दिया इस बैट्समैन ने, ट्रिपल सेंचुरी मारी। मान लिया तुम्हें कॉमेंट्री में रस है, ऐसे ही कॉमेंट्री करो, सुनने वाला पागल बन जाए यार। यार परमात्मा की प्रतिष्ठा की बोली लगी थी, वहां गया था, 1 करोड़ की बोली लगी, करो कॉमेंट्री, कोई ना नहीं बोलता हूं। आपकी कॉमेंट्री का सब्जेक्ट कौन सा? व्हाई नॉट गुड सब्जेक्ट? आपकी कॉमेंट्री सुनने के बाद सामने वाला भी पागल बन जाए, वो बोले यार अच्छा समाचार तुमने दिया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। यह है अध्यात्म जगत का मार्ग। बहुत मजे में ये जो 5 स्टेप की बात आज आपके सामने करना चाहता हूं, वो स्टेप की बात संभवित है वहां तक हमने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। हर प्रतिशत तो सफल नहीं बने, मगर करीबन करीबन यही ट्रैक पे हम जा रहे हैं। गिव एंट्री, चार्ज बैटरी, स्टॉप कमेंट्री। समझ में नहीं आता है कि इतना करने के बाद भी सच बोलो दूसरे की रॉन्ग कमेंट्री करते हो, समाप्त होने के बाद आपके चित्त में प्रसन्नता बनी रहती है क्या?
तो इसमें इन्वेस्ट क्यों? वाई योर माइंड्स इन्वेस्टमेंट? ऐसी चीज में तुम्हारा मन को, तुम्हारे वचन को तुमने क्यों रोक दिया? Where there is the interest, there is the investment, there is involvement and there is improvement. ऐसी कॉमेंट्री में आपका मन वचन काया को रोकना, आउटपुट में तो कुछ मिलता नहीं, देन फॉर व्हाट? આટલી બડી સભામાં કોઈ જવાબ આપશે તો ગમશે. જેમાં આઉટપુટમાં તમને નુકસાન મળે એવા કોઈ ધંધામાં તમે જો પૈસા રોકતા નથી તો આવી આઇટમમાં તમે તમારું મન શું કામ રોકો છો? ધીસ ઇઝ ઓનલી ક્વેશ્ચન ટુ યુ. હે સાચું બોલો, આમાં ક્યાં હમ પોસાયો? નરેન્દ્ર મોદીએ જીએસટી કેન્સલ નહોતું કરવું જોઈતું, આમાં હું તમારો હમ પોસાયો? શું આમાં 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 તમને કોઈ એમાં નહીં? તમે બહુ જાણકાર છો, તમે હમ પૂછવાની વાત કરી જીતુભાઈ, તમે જાણકાર જેવું માનો છો? अच्छे कपड़े पहन के निकले, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है, मगर अंदर का हैप्पीनेस का तो सोचो. यू कैन बी रिच बट यू कांट बी हैप्पी. रिचनेस बहुत अलग चीज है और हैप्पीनेस बिल्कुल अलग चीज है. वी डोंट विश टू बी रिच बट वी वॉन्ट टू बी हैप्पी. અને તમને ખબર નથી તમારી માનસિક